We are learning probability step by step, increasing our level of learning. So this is stage 2. We are going to learn some more concept to solve more difficult problem as compared to last live session. Complementary event, right? Suppose E is an event and the whole space is the part of sample space, and event E occupies this portion of entire space of sample space. So complementary event of an event E is this space. Elements which are not the part of E is called complementary event of this event E. जो E में नहीं है वो सारे एलिमेंट्स का सेट कंप्लीमेंट्री इवेंट ऑफ E का सेट कहलाएगा, राइट? जो E में नहीं है, इसके अंदर नहीं है, तो ये है. एंड वी नो E is subset of sample space, right? So dear students, probability of event E plus probability of complementary event of E comes 1. या तो E होगा या E नहीं होगा. EC is representing any element of E is not happening in an experiment. एक्सपेरिमेंट में E का कोई एलिमेंट नहीं हो तो वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है. तो ऐसे समझेंगे, किसी एक्सपेरिमेंट में E होगा यानी इवेंट E हैपनिंग होगी या नहीं होगी, यही दो चीज होगा ना. मैं बोलूं इस क्लास में एक स्टूडेंट आए या ना आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 100%. प्रोबेबिलिटी ऑफ एंटरिंग ऑफ अ स्टूडेंट, राइट, या उसका अब्सेंट होना, यही दो चीज होगा ना. ये तो दो चीज 100% होगी ना. और यही और लगा दिया एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग. प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट और probability of not happening of that event 100%, that is 1. So P plus PEC is equal to 1. Not in E but in S. E के अंदर नहीं होगा लेकिन S के अंदर होगा. Equally likely event. A and B are equally likely if and only if probability of A is equal to probability of B. In a case of tossing of a coin, probability of head is equal to 1 by 2 and probability of tail is 1 by 2. Chance of happening, chance of coming tail or head, both are same. Both are equally liked. In an experiment, the probability of head and probability of tail
both are equal, both are occurring with equal probability, right? They are likely occurred, दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, right? So they are called equally likely events. A and B are called equally likely events. Probability of getting head and probability of getting tail in a single throw of coin are equally likely events. Mutually exclusive event if A and B are mutually exclusive events. If A occurs, B cannot occur, and vice versa. If head comes, tail can't come. So both head and tail are mutually exclusive. If one event occurs, it excludes the happening of another event. So both events are called mutually exclusive. अगर एक हुआ तो दूसरे को नहीं होने देगा, एक दूसरे को हैपनिंग को स्टॉप कर देगा. अगर एक हुआ तो दूसरा नहीं होगा, राइट? So we don't have any common elements in the set of such events. कोई कॉमन नहीं होगा. A intersection B comes null set. So probability of null set is 0. Probability of A intersection B. A intersection B shows common set of common elements. And in case of two mutually exclusive events, we don't have any common elements. So their intersection comes 0 and null set and probability of null set is 0. कुछ तो होगा ना, नहीं होने की तो बात ही नहीं है. नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0. Collectively exhaustive event. Two events A and B are collectively exhaustive. A intersection A union B becomes sample space, head and tail. In a tossing of a coin, elements in sample space are head and tail. So for event of getting head and event of getting tail, these are two events in a tossing of a coin experiment. If we combine these two events, we will get all elements inside sample space, right? So A union B becomes sample space. A union B brings all elements in a set of a sample space. In a dice throwing, suppose A is an event of getting odd numbers. So जो सेट ए होगा उसमें कौन कराएंगे? 1 3 5. And B is an event of getting even numbers. So set B includes 2 4 6. If we combine A and B, we'll get all elements of sample space. A union B is a sample space. So such events are called collectively exhausted event. The most important event, independent event and dependent event. Guys, try to learn these two events carefully, because after this learning, you are going to solve many problems, because most of the problem are coming from these two concepts. So इसको जो है ना बहुत केयरफुली आपको लर्न करना है. Independent event. When events A and B are independent, if A is not affected by B is happening or not.
A and B are said to be unindependent events if happening of B is not affecting the happening of A. If B happens first trial, in first trial, it is not disturb, it is not affecting, it is not changing the probability of another event A, such events are called independent events. Suppose, guys, we are performing an experiment, right? उसमें एक इवेंट हो गया, फिर जो है ना हम एक और ट्रायल करते हैं, इसकी वजह से उस पर कोई इफेक्ट ना आए तो दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट कहलाएंगे. एग्जाम्पल, we draw a card from well shuffled pack of playing card. And by chance, we get a red card. So first event is getting a red card. Now we replace this card in a pack of playing card. And now we draw another card. So effect of first drawing of card is not going to change the probability of second event. So such two events are called independent event. ऐसे दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएंगे. बात समझ में आया मित्रों? इस तरह का इवेंट अगर एक का हैपनिंग दूसरे को अफेक्ट न करे तो ये आपको इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएंगे. अगर अफेक्ट हो गया, एक का होना दूसरे को अफेक्ट कर दिया तो ये डिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएंगे. राइट, आइए इस पर हम कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए when B has happened. B पहले हो चुका है, तब प्रोबेबिलिटी A की क्या होगी? Is represented by this symbol. This is called conditional probability. B हो गया है, B has happened, right? Then probability of A. If they are independent event, it is reduced to this symbol because the happening of B is not going to change the happening of A. Probability of B is not going to affect the probability of A. Actually, here probability of A is asking. Probability of A when B has happened. So if A and B are independent event, so happening of B is not going to affect the probability of A. So it is reduced to this symbol. It is simply asking the probability of A. Dear friends, if A and B are dependent events, then probability of A when B is given, when B has happened, probability of
A and B, and is represented by intersection. Probability of A and B. What is the probability of A and B? दोनों के होने की क्या probability है? Divided by probability of B. तभी जो ना इसमें से A का बचेगा. That's very simple. Probability of B when A is given. Probability of A and B divided by probability of A. याद करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके पास, राइट. So if we express probability of A like this, probability of B like this, then such A and B events are called dependent events, and calculation of this probability comes under conditional probability calculation, right. conditional probability के अंतर्गत आएगा. D. Morgan's law. A union B. In words A or B, OR, A or B. And if we put P here, probability of getting A or B, simply. But we have to get complementary event of A union B. That is equal to A complementary intersection B complementary. From a very elementary क्लास, ये जो ना बहुत पहले आप लोग पढ़ चुके होंगे. कंप्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए कंप्लीमेंट्री यूनियन बी कंप्लीमेंट्री. A union B is the event shows happening of either A or B, right. A union B complementary shows neither A nor B, and I shown here this law by Venn diagram, right. So now we solve problems. If out of all possible jumbles of the word bird, all possible jumbles, we have 4 letters in this word bird. So we make 4 places. First place can be filled by any letter B or I or R or D. So we can put any letter in the first place in 4 ways. Now we have only 3 letters after filling up this first place. So by remaining 3 letters, we can fill this place by 3 ways. This is by 2 ways, right? And last has 1 way, right? So 4 into 3 into 2 into 1, we can get total 24 jumbles of word. भले मीनिंगलेस होंगे, लेकिन हम 24
इन चारों को अरेंज करके, चारों लेटर्स को अरेंज करके 24 वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। मीनिंग से मतलब नहीं है, वर्ड्स हमारा बन जाएगा। लाइक राइट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द picked word starts with B? Right, we have to find the probability of getting a word out of total 24 jumbles of the word which starts with letter B. B से start हो, so first place में B ही हो. So after filling first place by B, second place can be filled by 3 ways, third place can be filled by 2 ways, and last place has only one way. So 3 times 2 times 1, 6. So we have 6 words that start with letter B out of 24. So if we pick one word out of all possible jumbles of the word bird, this is the probability to get a word that starts with letter B. 6 upon 24. A man and his wife appear in interview for 2 vacancy for same post. The probability of husband selection 1 by 7. Suppose H represents event of husband selection. So H bar represents husband not selected. W represents wife selection. So W bar represents its complementary event, wife not selected. Right. The probability of husband selection. So H is equal to 1 by 7. So H bar is equal to 1 minus 1 by 7. That is 6 by 7. Probability of wife selection 1 by 5. And probability of wife not selected 1 minus 1 by 5. That is 4 by 5. What is the probability of only one is selected? Only one is selected. Husband selected, wife not selected. Right? Husband selected and wife not selected. Probability of husband selection 1 by 7 and wife को सेलेक्ट नहीं होना है. जब हस्बैंड सेलेक्ट हो गया तो वाइफ को सेलेक्ट नहीं होना है. हस्बैंड सेलेक्टेड एंड वाइफ नॉट सेलेक्टेड, multiplication rule of counting, and wife not selected, its probability 4 by 5. Event of getting any one selection is completed. Still we have another way. We use addition rule of counting. Wife selected, husband not selected. Wife selection probability 1 by 5 and husband not selection probability 6 by 7. 1 by 7, 4 by 5 plus 1 by 5, 6 by 7. It is 2 by 7. Good problem. In which both addition and multiplication rule of counting are used. A deck of 5
cards, each carrying a distinct number from 1 to 5, is shuffled thoroughly. Two cards are then removed at a time from a deck. What is the probability that the two cards are selected with the number on the first card being one higher than the number on the second card? So, first two, second one, first three, second two, first four, second three, first five, second four, first six. There is no any number. We have only five cards, right? So we have four choices, and by taking two, we can make total 5C2. पेयरिंग दो नंबर हमें निकालना है, दो कार्ड निकालना है, तो उस पर दो नंबर होंगे, तो फाइव में से फाइव कार्ड में से दो कार्ड कितने तरीके से निकाला जा सकता है? 5C2. सो 4/5C2. दिस इज योर आंसर. There are two containers with one contains four red, three green balls, and other three blue, four green balls. First container has four red, three green. Second has three blue, four green. One ball is drawn from each container. The probability that one is red and another is blue. Red is coming from this container, blue is coming from this container, then our task is completed. So after getting one red out of four red and total 7, we have to draw one. So this is the probability of getting one red from this container. Work is not completed because we have to get one red and one blue. So blue is coming from this container. In these ways, 3C1, its probability 7C1. Then our task is completed. They are multiplied together. Multiplication rule of counting. And लगा हुआ था. A fair dice is rolled twice. The probability that an odd number will follow even number is rolled twice. The probability that an odd number will follow even number. So first we get even number, either 2 or 4 or 6. Its probability is 1/2. 3/6. 1/2. Probability of getting first even and odd number follow happening of even. So probability of getting second as odd, 1, 3, 5. They are multiplied together. Odd is following even. Probability of getting odd number that follows even number. तो पहले इवन हुआ, कितना उसकी प्रोबेबिलिटी है, देन ऑड उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, काम दोनों के होने के बाद कंप्लीट हो रहा है. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड दैट फॉलोज इवन. Multiplication rule of counting is used here. An examination consists of two papers, paper 1 and paper 2. The probability of failing in paper 1
probability of failing in paper 1 is 0.3. That is in paper 2, probability of failing in paper 2 is 0.2, right? Given that a student is failed in paper 2, a student, पहले क्या है, पहले कौन इवेंट हुआ, a student is failed in paper 2, right? फर्स्ट इवेंट क्या हुआ है, failed in paper 2. Then the probability of failing in paper 1 is, जब स्टूडेंट फेल कर गया पेपर 2 में, then probability of failing in paper 1 0.6. देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई, जब पेपर 2 में फेल कर गया तब पेपर 1 में फेल करने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है. हो सकता है गाइस पेपर 2 इज अ मैथमेटिक्स, अगर मैथमेटिक्स में फेल हो गया फिजिक्स में फेल करने की चांस बढ़ेगी, है ना, इफेक्ट डाल देगा कि नहीं. इस तरह से कुछ सब्जेक्ट होते हैं कि अगर इसमें ये कमजोर है तो उसका वो भी कमजोर होगा होगा. That's why guys I teach mathematics also. This is the reason for good command over engineering subject, because स्टार्टिंग में मैं अपने आप को एज ए मैथमेटिक्स के टीचर ही ट्रीट किया था. सो यहां पर गुड कमांड हुआ और मैं इसका यूज देखना चालू किया कि यूज कहाँ है. तो एलिमेंट्री लेवल पर तो यूज नहीं आ रही थी, ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था. 7th 8th 9th 10th ऐसे क्लासों में समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही 10+2 में इंटर किए, इंटरमीडिएट में इंटर किए, तो वहां से मैथमेटिक्स का रूल समझ में आने लगा, तो इंटरेस्ट हमने उधर शिफ्ट कर दिया. बट जो है ना मैथमेटिक्स मेरा बिगिनिंग से बहुत स्ट्रांग था, तो आप लोग काफी इंजॉय करेंगे. बट जो है ना मैथमेटिक्स ज्यादा डिफिकल्ट हमारे गेट में नहीं आता. अदरवाइज जो है ना यूनिवर्सिटी लेवल का अगर पढ़ाने को मिलता तो काफी इंजॉय करते मेरे से आप लोग. द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट फेलिंग इन बोथ पेपर इज, क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन बोथ पेपर, पेपर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन पेपर 1 एंड इंटरसेक्शन सिंबल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन पेपर 2. probability of failing in one given probability of failing in 2 into probability of failing in paper 2, right? 0.6 into 0.2. This is your answer. A fair coin is tossed 10 times. What is the probability that only first 2 tosses will yield head? पहला 2 ही केवल हेड दिया, बाकी 8 कितने दिए, टेल दिया. Probability of getting head in first toss is 1/2. Probability of getting head in second toss is 1/2. Guys, we had to perform tossing 10 times. So first 2 tosses yield head and remaining 8 tosses will yield tail. Then our work is completed. So first head, second head, and third tail, and fourth tail, and fifth tail, and multiplication rule of counting is applied here. So probability of getting head in first toss 1/2, probability of getting head
in second toss, 1 by 2, probability of getting tail in third toss, 1 by 2, 1 by 2, 10 times, right? 1 by 2 raised to the power 10 is your answer. A fair dice is tossed 2 times. The probability that second toss results in a value that is higher than the first toss. सेकेंड टॉस में जो है ना वैल्यू फर्स्ट टॉस से हायर होना चाहिए. अगर फर्स्ट 1 आया तो इससे हायर सेकंड में आना चाहिए. तो क्या क्या आना चाहिए? 2, 3, 4, 5, 6. कितना हुए? 5. 5 ways of getting second higher than first. ये 5 तरीका हो गया. 1, 2, फर्स्ट में 1, सेकंड में 2. एक वे हुआ. फर्स्ट में 1, सेकंड में 3. अनदर वे 2 हुए. फर्स्ट में 1, सेकंड में 4. इस प्रकार 5 ways in which we are getting second toss higher than first toss. First toss results 2. Second toss which is higher than first toss. 3 or 4 or 5 or 6. Only 4 ways. First results 3, so higher than 3 in second. 4 to 6, 3 ways. First results 4, higher than 4 in second toss. 5 or 6, 2 ways. First results 5, second higher than first, only one option. So there are 5 for 9, 9 and 6, 15 ways in which we will get second toss higher than first, out of total 36 pairing of numbers into tossing. डाइस के टॉसिंग. तो क्या हुआ? 15/36. Here is your answer. A fair coin is tossed till the head appears for the first time. If first results head in a first tossing, we are not going to perform second tossing. Our work is completed. A fair coin is tossed till the head appears for the first time. पहली बार में अगर हेड आ गया तो हमें जो है ना, मतलब हेड आ गया तो हमें जो है ना टॉसिंग नहीं करना है. तो हमने कॉइन को टॉस किया एंड इन फर्स्ट टॉसिंग हेड results, we are not going to perform another tossing. Guys, we have another way to stop tossing. Work is completed. We have stopped tossing. But still we have another way. Additional rule of counting is applied. If first results tell, the probability that is the number of tosses required is odd. So पहला ही बार में पहला first one is odd number and in first tossing head comes, we stop tossing. And this number of tossing is 1 and it is odd number. We stop tossing. If first, still we have another way. If first results tell, second results tell, then we perform. हमें टॉसिंग कब बंद करना है? जब हेड आ जाए तब. अगर पहले में टेल आ गया हम फिर से टॉस करेंगे, फिर दूसरे में टेल आ गया फिर से टॉस करेंगे.
अगर तीसरे में हेड आ गया, दिस इज odd number of tossing, we stop tossing process. Still we have another way, addition rule of counting. हमारा काम कंप्लीट हो चुका है. फर्स्ट टेल, सेकेंड टेल, थर्ड टेल, फोर्थ टेल, अगर फिफ्थ अगर हेड आ गया, टॉसिंग बंद कर देंगे. ये कितना नंबर ऑफ टॉसिंग है? और नंबर ऑफ टॉसिंग में अगर हेड आता है तो हमें जो है ना बंद कर देना है. मतलब कि पूछा जा रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड इज ऑड. ऑड नंबर का टॉसिंग हो और हमारा हेड आ चुका है. स्टिल वी हैव अनदर वे. टेल 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 6. और नंबर ऑफ टॉसिंग में हेड आया है, बंद कर देंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 1/2 plus probability of getting tail 1/2 raised to the power 4 into 1/2. बात समझ में आ रहा है ना? 1/2 क्या आ रहा है? 1/2 plus 1/2 raised to the power 3 plus 1/2 raised to the power 5 plus 1/2 raised to the power 7. Guys, this is infinite geometric progression. Infinite GP. Find common ratio. कॉमन रेशियो क्या होगा? 1/4. इसमें इसे डिवाइड कर दो. 1/4 is the common ratio. So sum of infinite GP is your desired probability. तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो. 1 माइनस कॉमन रेशियो 1/2. फर्स्ट टर्म 1/2. इस इनफाइनाइट जीपी का फर्स्ट टर्म क्या? 1/2. कॉमन रेशियो कितना है? सो फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो 2/3 इज योर आंसर. दिस इज ब्यूटीफुल प्रॉब्लम. गजब. केवल एडिशन मल्टीप्लिकेशन लगाकर सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. सपोज अ फेयर 6-sided dice is rolled once. If the value on the dice is 1 or 2 or 3, then die is rolled on second time. अगर 1 या 2 या 3 आ जाए तब जो है ना दूसरी बार हमें रोल करना है. ध्यान देना क्वेश्चन पर. सपोज अ फेयर 6-sided dice is rolled once. If the value on dice is 1, 2 or 3, the dice is rolled on second time. What is the probability that the sum of the total value that comes up is 6? टोटल 6 आए सम, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? डियर स्टूडेंट्स, मैंने रोल किया डाई को और पहले ही बार में 6 आ गया. दूसरी बार मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है. सम कितना है? 6 है. पहले बार में 1 आ गया. 6 आने के लिए 5 आना पड़ेगा. पहले बार में 2 आया. 6 सम आने के लिए 4 आना पड़ेगा. 3 आया. क्योंकि 1 2 3 आता है तो दूसरी बार जाते हैं. अगर कोई नंबर आएगा तो दूसरी बार हम रोल नहीं करेंगे डाइस को. क्वेश्चन ने बोला है इफ द वैल्यू ऑन डाइस इज 1 2 3, द डाई इज रोल्ड ऑन सेकेंड टाइम. अगर 1 2 3 हो तभी सेकेंड टाइम जाना है. 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए तो मुझे सेकेंड टाइम नहीं जाना है. तो पहले ही बार में अगर 6 आ गया तो सेकेंड जाना नहीं है, फिर भी सम 6 है. पहले में 1 आया तो सम 6 होने के लिए ये आना चाहिए. 3 आया तो सेकेंड में फ्रेंड्स क्या आना चाहिए? 3 आएगा तो 6 हो गया. सो पहले में ही जो है ना हमारा 6 आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/6. राइट. काम हो चुका है. सम ऑफ गेटिंग सम of 6 work is completed. Still we have another
ऑप्शंस एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग सब में अप्लाई हो जाएगा। पहले बार में 1 और दूसरे बार में 5, 1/6 और दूसरे बार में क्या होना चाहिए, फर्स्ट 1 एंड सेकेंड इज 5, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग, फर्स्ट 2 एंड सेकेंड 4, फर्स्ट 3 1/6 प्रोबेबिलिटी, सेकेंड 3 1/6 प्रोबेबिलिटी, सबको जोड़ो, कट कट, दिस इज योर आंसर। मोस्ट ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, मोस्ट ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। अब बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 6, 6 7, मैक्सिमम कितना आएगा 3 + 6 9 आएंगे, क्योंकि हमें सेकेंड टाइम तभी करना है जब इसमें से कोई हो। तो मान लीजिए मैक्सिमम सम कितना आएगा, पहले में 3 आ गया और दूसरे में 6 आ गया 9, तो 6 7 8 9, 6 का निकाल लो अलग से, 7 का निकाल लो अलग से, 8 का निकाल लो अलग से, 9 का निकाल लो अलग से, ठीक है, सबको ऐड कर दो, राइट। फर्स्ट 6 आ गया, मुझे सेकंड नहीं करनी है, तभी सम 6 है। फर्स्ट 1 आ गया तो सेकंड क्या आना चाहिए, सम 6 और 6 से बढ़ाने के लिए 5 और 6, क्लियर। तो 5, इसका जो है ना 1/6, इसका 1 प्लस लग जाएगा, 1/6 आने का प्रोबेबिलिटी है, और 5 एंड 6 की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दो नंबर की होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 5 और 6, 2/6, टोटल 6 में से 2/6। फर्स्ट 2 आ गया तो सम जो है ना 6 और 6 से बड़ा हो 9 तक हो, या तो 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो 1/6 एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग, 1/6 इन 2, तब ना सम 6 से बड़ा होगा, 3/6 प्लस 1/6 into 4/6, most beautiful problem। A single dice thrown twice, what is the probability that the sum is neither 8 or 9? Find the probability of getting sum 8 or 9, subtract that probability from 1 to get the answer। So probability of getting 8, 8 कैसे मिलेगा, 8 कैसे मिलेगा, 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6, प्रोबेबिलिटी जो है 8 को लाने की, सारे नंबर लिख दिया मैंने, 2 6 3 5, कितना तरीका 5, उसके बाद जो है ना सम 9, तो क्या क्या होगा 6 3 5 4, ये घटाओ इसमें बढ़ाओ, 4 5 3 6, कितने तरीके, 4 5 4 9 तरीके, टोटल कितने होते हैं 36। भाई दो बार थ्रो करेंगे तो टोटल पेयरिंग कितना बनेगा 36। So this is the probability of getting either 8 or 9. So what is the probability of getting neither 8 nor 9? 1 minus 9/36. Three vendors were asked to supply a very high precision component. हाई प्रिसीजन कंपोनेंट को 3 वेंडर्स के द्वारा सप्लाई किया जाना है। The respective probability of the meeting the strict design specification are 0.8, 0.7, 0.5. So first vendor supplies as per design specification, जैसा डिजाइन दिया गया है वैसा सप्लाई करने की उसकी 80% चांस है, सेकंड की 70%, थर्ड की 50%, राइट। सो फर्स्ट वेंडर हमारा ए हो गया, strict design specification supplying probability by first vendor 0.8 and not supplying as per design specification by first vendor 0.2, 1 minus 0.8,
strict design specification supplying probability by vendor B 0.7, not supplying as per design specification by vendor B 0.3, PC 0.5, PC bar 0.5. Each vendor supply one component. तीनों के तीनों जो है ना एक एक component supply. The probability that out of all of three components supplied by the vendor, at least one unit meets the desired specific design. कम से कम एक जो है ना सही सप्लाई किया होगा, एक सही सप्लाई किया होगा, यानी पहला सही सप्लाई किया और दूसरा और तीसरा गंदा गंदा सप्लाई किया, काम कंप्लीट है. ए करेक्ट सप्लाई किया, बी एंड सी गलत सप्लाई किया, बात समझ गए, काम कंप्लीट है. और कोई चांस है? बी सही सप्लाई किया, ए एंड सी गलत गलत किया, और कोई ऑप्शन है? सी सही सप्लाई किया एंड बी एंड ए गलत गलत सप्लाई किया. हमारा काम हो चुका था. कम से कम एक एज पर डिजाइन स्पेसिफिकेशन रिसीव हुआ कि नहीं कंपनी में, काम कंप्लीट हो चुका था, तभी ढेर सारे ऑप्शन थे, सब जो है ना हो जाए. लेकिन यहां पर मल्टीप्लीकेशन होगी, मल्टीप्लीकेशन करोगे यहां पर. ए का करेक्ट सप्लाई करने का प्रोबेबिलिटी 0.8 और बी का नहीं करने का सप्लाई 0.3, सी का नहीं करने का सप्लाई 0.5, ऐसे इसमें मल्टीप्लीकेशन लगेंगे, क्योंकि ए का करेक्ट देना एंड बी का रॉन्ग एंड सी का रॉन्ग, सो मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ काउंटिंग. इसको करेक्ट करेगा प्लस इसी तरह बी का करेक्ट 0.7, ए का गलत 0.2 मल्टीप्लिकेशन, सी का गलत 0.5, इसी प्रकार सी का करेक्ट प्रोबेबिलिटी 0.5, बी का गलत 0.3, ए का गलत 0.2. स्टिल वी हैव अनदर वे. कम से कम एक, दो सही है, ए और बी सही किया, सी गलत किया. बी एंड सी सही किया, ए गलत किया. सी एंड ए सही किया, बी गलत किया. फिर जो है ना इसका निकालो, ए का सही इनटू बी का सही होने की प्रोबेबिलिटी. बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम, तीनों में तीनों सही कर दिया, ए भी सही, बी भी सही, सी भी सही. एटलीस्ट एक सही होना चाहिए, तो दो भी सही, तीन भी सही, सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो. डियर फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी सिंपल टास्क टू गेट द आंसर क्विकली. ए गलत ससुर, बी गलत ससुर, सी गलत, वन में से घटा दो, कम से कम एक तो सही. ए भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत. एज पर डिजाइन स्पेसिफिकेशन, all vendors are not supplying components in a company, so this is the probability. तो वन में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो या तो ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, या दो सही होगा, कोई डायरेक्ट रिजल्ट दे देगा. ये वही किया हूं मैं, कचर पचर लंबा, और ये शॉर्टकट सेकंड में था. तो कंसेप्ट जब बहुत स्ट्रांग होता है, हाउ टू कमांड प्रोबेबिलिटी, ultimate way to solve huge problems. बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करो, करते करते जो ना कमांड आ जाएगा. इसीलिए इस टॉपिक को थियरी और ही नहीं है, इस टॉपिक में थोड़ा सा है, करके छोड़ देता हूं मैं. तो इसको कल 30 के अप्रॉक्स क्वेश्चन किया, आज देखिए कितना क्वेश्चन, अभी 12 हो चुका है. तो इस तरह से जो ना कमांड का 100+ क्वेश्चन करेंगे, इसमें चिंता ना करिए. लंबा पढ़ाता हूं प्रोबेबिलिटी, अभी और प्रोबेबिलिटी है. एंड देन जो ना फाइनली आपके गेट में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में कितना प्रॉब्लम किस टाइप का पूछा गया, उसको सॉल्व करके समाप्त करेंगे. पहले लर्न कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी को, ठीक है? तो केवल अभी लर्न करिए, सुनिए. सर कॉन्सेप्ट को किस तरह अप्लाई कर रहे हैं वो लर्न कीजिए, ठीक है? सेम है एडिशन मल्टीप्लीकेशन नंबर ऑफ प्रॉब्लम के साथ, फिर आप खुद सॉल्व कीजिएगा. दिक्कत होगा, सॉल्यूशन देखिएगा.
द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इन अ सिंगल टॉस ऑफ बायस्ड कॉइन इज 0.3। हेड की प्रोबेबिलिटी, बायस्ड कॉइन है, कुछ टेक्निक लगा दिए कि हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 0.3 हो गई। द कॉइन इज टॉस रिपीटेडली टिल अ हेड इज ऑब्टेन्ड। तो हेड की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0.7। तब तक हमें जो है ना कॉइन को टॉस करना है जब तक कि हेड ना आ जाए। इफ द टॉसेस आर इंडिपेंडेंट, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन फिफ्थ टॉस इज, पांचवी टॉस में पहली बार हेड आया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? यानी पहली बार टेल आया, दूसरी बार टेल आया, तीसरी बार टेल आया, चौथी बार टेल आया, पांचवी बार में हेड आया, टॉसिंग स्टॉप करेगी। probability of getting tail into probability of getting tail into probability of getting tail to probability of getting tail, and at fifth tossing we are getting head, we stop tossing. टेल की प्रोबेबिलिटी 0.7, सब मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ क्वांटिटी लग जाएगा। अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हैज 4 गेट व्हिच ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, उसमें 4 गेट लगे हुए हैं और चारों के चारों इंडिपेंडेंटली ऑपरेट हो रहा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ ईच गेट इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ गेट 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ गेट 2, सब बराबर है, कितना है? 0.2। गिवन दैट गेट 1 हैज फेल्ड, अरे भाई गेट 1 फेल हो गया, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ गेट 2 एंड 3 विल फेल इज, अरे बाबा गेट 1 फेल हो गया, उसका कोई फर्क 2 और 3 पर पड़ेगा, बिकॉज दे ऑल आर ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली। चारों के चारों गेट जो ना इंडिपेंडेंटली ऑपरेट हो रहा है, तो एक फेल हो गया, उसमें भी 2 और 3 पर क्या फर्क पड़ेगा? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ 2 एंड 3, जब गेट 1 जो है ना फेल कर चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके फेल होने से। निकालो, इसके फेल होने के बाद 0.2 इंटू 0.2, भूलियाने के लिए दिया था, ये इंडिपेंडेंट लगा दिया था। A person on a trip has a choice between private car and public transport. Private car, public transport. Person has two options. The probability of using a private car is 0.45. So probability of using public transport 0.55, because person has only two choices, private car और public transport। या तो अपनी गाड़ी से जाएगा या जो है ना बस से, मेट्रो से जाएगा। बात समझ में आया? तो अगर पर्सनल जो कार है उसको चूज किया, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी 0.45, नहीं चूज किया तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.55 है। 1 माइनस 0.45। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं किया तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लाइए, प्राइवेट कार यूज नहीं किया तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेगा। प्राइवेट कार यूज करने की प्रोबेबिलिटी 0.45, सो 1 माइनस 0.45 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग public transport. While using the public transport, further choices available are bus and metro. Bus and metro. Out of which the probability of communicating by bus is 0.55. अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्ट किया तो उसके बाद फर्दर उसे बस और मेट्रो भी यूज करना है, मतलब बस और मेट्रो का चॉइस है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। डियर फ्रेंड्स, अगर उसने जो है ना मेट्रो यूज किया तो उस बाई बस प्रोबेबिलिटी 0.55 है, बाई बस से जाने की प्रोबेबिलिटी 0.55 है, तो मेट्रो से क्या हो जाएगी? 0.45। In such a situation, the probability rounded up to 2 decimals of using a car, bus and metro respectively would be, कार चूज करने की प्रोबेबिलिटी 0.45 प्लस, एक काम हो गया, बस
चूज करने की प्रोबेबिलिटी, पहले वो चूज करेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड बस, मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ काउंटिंग लग जाएगा 0.55 इंटू 0.55, पहले तो 0.55 से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ऑफ करे देन बस। मेट्रो की क्या कहानी है, पहले वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ऑप्ट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, तब मेट्रो के पास जाएगा, मेट्रो को चूज यहां करेगा, तो पहले ये तो चूज कर ले, पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ऑप्ट करेगा देन मेट्रो, मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ क्वांटिटी। तो ये कार के यूज करने की प्रोबेबिलिटी, ये बस के यूज करने की प्रोबेबिलिटी, ये मेट्रो के यूज करने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर? A box contains 2 washer, 3 nuts and 6 bolts. Items are drawn from the box at random without replacement. निकालते जा रहे हैं, रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। The probability of drawing 2 washers first, followed by 3 nuts and subsequently the 4 bolts. 2 washer में से एक एक करके निकालना है, एक निकाला, टोटल कितना है 3 2 5 6 11 C1। अब कितना वासर बचा, एक वासर में से एक वासर निकालना है 1C1। अब कितना बचा है 10C1, दोनों वासर निकल गए, खलास, काम कंप्लीट नहीं हुआ है, सब निकालना है, फर्स्ट फॉलोड बाय 3 नट्स। अब कितना बचे हैं 6 + 3, 3 नट्स में से एक नट निकालना है 3C1, पास हो गया, टोटल कितना है 9C1। इसी तरह फ्रेंड्स काम कंप्लीट कर देना है। फाइनली द चांसेस ऑफ ए स्टूडेंट पासिंग एग्जाम इज 20%, पास करने का चांस 20% है, 0.2 प्रोबेबिलिटी हो गया। द चांस ऑफ ए स्टूडेंट पासिंग इन एग्जाम एंड गेटिंग अबव 90% मार्क्स इन इट इज इंटरसेक्शन, पास भी हो जाए और 90% से अबव मार्क्स आ जाए, इंटरसेक्शन लगाया एंड वाला के लिए। पासिंग, पास्ड इन एग्जाम एंड गेटिंग अबव 90%, पास भी हो जाए और एंड 90% से अबव, इंटरसेक्शन लगा दिया मैंने, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 50% है। गिवन दैट अ स्टूडेंट passes the examination, the probability that the student gets above 90% marks, 90% मार्क्स स्टूडेंट का आया होगा जब स्टूडेंट पास कर गया है। बात समझ में आया? दो इवेंट है, 90% से अधिक मार्क्स लाना, ठीक, और स्टूडेंट को पास करना। बात समझ में आया? डियर फ्रेंड्स, सो पास भी कर जाए, 90% से भी लाए, और इसमें डिवाइड कर दीजिए पास से, तो 90% वाला इसमें से बच जाएगा। ठीक है, जब पास किया तो 90% से एबव मार्क्स कितना होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये दिया हुआ आपका 0.05 और पास की प्रोबेबिलिटी 0.2, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लाके सॉल्व कर दो। अब फेयर क्वाइन, और ये डायरेक्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर है, px 1/4 py 1/3 px इंटरसेक्शन y दिस, तो pyx, p प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x, p x इंटरसेक्शन y प्रोबेबिलिटी ऑफ x। लगाओ फॉर्मूला सॉल्व करो, लगाओ फॉर्मूला सॉल्व करो। A fair coin is tossed 3 times in succession. If the first toss produces a head, then the probability of exactly 2 head in 3 tosses is, देखना बड़ा प्यार, यहां पर बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे। A fair coin is tossed 3 times in succession. If the first toss produces a head, पहला head, then the probability of exactly 2 heads in 3 toss, पहला हेड, सिंपल स्पेस बना लो, पहला हेड, यहां पर सिंपल स्पेस ध्यान से रखना होगा, पहला हेड, दूसरा हेड, तीसरा हेड, पहला हेड, दूसरा हेड, तीसरा टेल, पहला हेड, दूसरा टेल, तीसरा हेड, पहला हेड, दूसरा टेल, टेल, ये है आपका सिंपल स्पेस। क्वेश्चन ट्विस्टेड है, इसमें से then the probability of exactly 2 head in 3 tosses, exactly 2 head, ये है बस, so 2/4। A box contains 4 white balls and 3 red balls
4 white, 3 red. In succession, 2 balls are randomly selected and removed from the box. दो निकाला गया, बॉक्स से हटा दिया गया. Given that first remove ball is white, पहला white है, that the second remove ball red is. रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब व्हाइट पहले बार निकल जा चुका है विदाउट रिप्लेसमेंट. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. भाई जब व्हाइट निकल गया है तब रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? इट्स अ वेरी सिंपल. Given that first removed ball is white, the probability that second removed ball is red. बचा कितने बॉल? बचा कितने? 6 बॉल बचा, जिसमें से 3 रेड है ना? 3C1 6C1. खटाक. या आप ऐसे भी बना सकते हो. ऐश्वर्या राय studies either computer science और मैथमेटिक्स एवरी डे. दो ही सब्जेक्ट पढ़ती है मैडम, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स. दो ही पढ़ती है बस. If she studies computer science on a day, then the probability that she studies math next day is 0.6. अगर कंप्यूटर साइंस अगर वो पढ़ ली तो अगले दिन मैथ की पढ़ने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है. कंप्यूटर साइंस अगर किसी दिन पढ़ ली तो नेक्स्ट डे मैथ पढ़ने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है. ध्यान रखिएगा. इफ सी स्टडीज मैथ ऑन अ डे, नेक्स्ट डे, देन द प्रोबेबिलिटी दैट सी स्टडीज कंप्यूटर साइंस नेक्स्ट डे 0.4. अगर मैथमेटिक्स पढ़ ली किसी दिन तो अगले दिन जो है ना कंप्यूटर साइंस पढ़ेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4. गिवन दैट ऐश्वर्या स्टडीज कंप्यूटर साइंस ऑन मंडे, तो मंडे को वो जो है ना कंप्यूटर साइंस पढ़ी. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी स्टडीज कंप्यूटर साइंस ऑन वेडनेसडे? वेडनेसडे को वो जो है ना कंप्यूटर साइंस पढ़ेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. अगर मंडे को कंप्यूटर साइंस पढ़ी तो अगला दिन वो मैथ पढ़ती है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? इफ सी स्टडीज कंप्यूटर साइंस ऑन अ डे, then the probability that she studies math the next day is 0.6. so math पढ़ेगी ट्यूसडे को, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है. तो बाकी दो ही सब्जेक्ट पढ़ती है. ट्यूसडे को कंप्यूटर साइंस पढ़ेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 माइनस 0.6, 0.4. फ्रेंड्स, अगर ट्यूसडे को वो मैथ पढ़ती है, इफ सी स्टडी मैथ ऑन अ डे, द प्रोबेबिलिटी दैट सी स्टडीज कंप्यूटर साइंस नेक्स्ट डे इज, तो नेक्स्ट डे मतलब वेडनेसडे को वो सीएस पढ़ेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.6. तो मैथ फिर से पढ़ेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.4, 0.6. बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है. अगर ट्यूसडे को कंप्यूटर साइंस पढ़ती है तो नेक्स्ट डे मैथ पढ़ेगी, मतलब वेडनेसडे को, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.6. 0.6. तो फिर जो है ना कंप्यूटर साइंस पढ़ेगी, इसकी. डियर फ्रेंड्स, वेडनेसडे को कंप्यूटर साइंस पढ़ती है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? एक ये रास्ता है कंप्यूटर साइंस के लिए. काम कंप्लीट हो चुका है. स्टडिंग कंप्यूटर साइंस ऑन वेडनेसडे इज accomplished. Still we have another way to study computer science on Wednesday in this part. एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग. पहले मल्टीप्लीकेशन ऊपर वाले में, पहले इधर से इधर जाएगा. 0.6 पहले मैथ पढ़े, पहले कंप्यूटर साइंस तो पढ़ी ली, नेक्स्ट डे मैथ पढ़े एंड देन कंप्यूटर साइंस पढ़े. तब जाके देखो, ट्यूसडे को मैथ पढ़े
एंड देन कंप्यूटर साइंस 0.6 इंटू 0.4 काम कंप्लीट हो गया. स्टार्टिंग कंप्यूटर साइंस ऑन वेडनेसडे कंप्लीटेड. ऐसे भी आवना रहे. ट्यूसडे को कंप्यूटर साइंस पढ़ी, इतनी प्रोबेबिलिटी, एंड फिर जो ना वेडनेसडे को कंप्यूटर साइंस पढ़ी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 एंड मल्टीप्लिकेशन, यहां पर एडिशन. खल्लास. सो गाइस, इस तरीके से जो है ना बार बार इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही इसको कमांड किया जा सकता है और आपको आसानी से 4 नंबर देके जाएगा, एक एप्टीट्यूड वाले में और एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में. एक बार तो 8 नंबर का प्रोबेबिलिटी आ गया था 2008 में. ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी को हम इग्नोर नहीं करेंगे बिकॉज इट इज गोइंग टू गिव यू एटलीस्ट 2 marks in get examination very easily without consuming your time, precious time. प्रीशियस इसलिए कि यहां से डिसाइड होगा कि आपकी लाइफ अब हायर एम के साथ कंफर्ट जोन में जा रही है या अंधकार में डिस्कंफर्ट में जा रही है. देखिए, एम क्या है, अगर सेट कर लिया कि हमें जो ना नेटिव मुंबई में जाना है, आईआईटी बॉम्बे में जो है ना जियो इन्फॉर्मेटिक्स लेना है, आईआईसी बैंगलोर में जाना है, खड़गपुर में जाना है, आईआईटी दिल्ली में जाना है इंडस्ट्रियल के लिए, कानपुर में जाना है इंडस्ट्रियल के लिए, तो यहां से जो है ना आपका एम क्लियर है कि हमारा जॉब हो जाएगा. कंफर्ट में चले गए, है ना, कंफर्ट जोन में गए क्योंकि यहां से इजी हो गया आपका. अगर मिस किए, करना क्या पता नहीं, मिस किए तो अब क्या करना है, पापा जी हेल्प करो. पापा जी के पास है कैश, गो फॉर बिजनेस, और आप राइज भी कर सकते हैं. अंधकार, क्या करेंगे ना करेंगे, सब अंधकार, सब अंधकार. तो अंधेरा में डर लगेगा भाई, उजाला में डर लगेगा कि अंधेरा में, जहां पर क्लियर है वहां डर नहीं लगेगा. डर नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, लाइफ आराम होगी. आराम होगी तो क्या होगा, अच्छा फील होगा. यानी ये गॉड ने जिंदगी दिया है, इसको एंजॉय करेंगे. और चले गए अंधेरे वाले में, स्ट्रगल करते, सोचते सोचते डिप्रेशन का शिकार होते होते समय भी बर्बाद कर रहे हैं, शरीर भी बर्बाद कर रहे हैं. तो इसलिए मेहनत करके सही समय पर सही जगह को जाए. मेरे भाई, सेशन हम यही क्लोज करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लाइव सेशन.